नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 13th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it as Guru Dakshina with at least 3 friends or WhatsApp groups. So let's begin. Question number 1. What is the radiosonde instrument? An instrument used in weather forecasting, instrument used to measure wind velocity, an instrument used to measure rainfall, or D, none of the above. The correct answer is A, an instrument used in weather forecasting. तो जो रेडियो सॉन्ड इंस्ट्रूमेंट होता है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। वो एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे के नीचे मेटल का या प्लास्टिक का रेडियो सॉन्ड इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और उसमें सारे डिवाइसेस लगे होते हैं और उस गुब्बारे को एक नियत समय पर छोड़ा जाता है आसमान में और वो ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री तक एटलीस्ट जाता है और उस प्रोसेस में वो कितना विंड वेलोसिटी है, कितना एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, क्लाउड कवर कितना है, ये सब सारा डेटा वो रिकॉर्ड करके और वो इंस्ट्रूमेंट नीचे ग्राउंड स्टेशन पर भेजा जाता है। सो रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट is basically a plastic or a metal box which has all kinds of gear inside it, and that box is attached to a balloon and it is let out into the atmosphere at a fixed time of the day, and as it rises up to the till the boundary of the troposphere, it sends all kinds of weather data regarding temperature, precipitation, cloud cover, atmospheric moisture and wind velocity, etc. to the ground station. Okay. Question 2. What is rain gauge? A, an instrument used to measure rainfall. B, instrument used to measure wind velocity. C, instrument used to measure earthquakes, or D, none of the above. Rain gauge, साफ ही पता चल रहा है नाम से कि रेन को गेज करने के लिए, गेज मतलब होता है मेजरमेंट। सो ए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, दैट्स द करेक्ट आंसर। रेनफॉल को मेजर करने के लिए, बारिश को नापने के लिए होता है। क्वेश्चन 3. व्हाट इज मेटियोरोलॉजी? मेटियोरोलॉजी क्या होती है? ए, साइंस ऑफ मेटियोर्स। बी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। C, study of earthquakes, या D, study of rainfall pattern only. Correct answer is B, scientific study of weather and climate. And under meteorology, we study every aspect of weather and climate. तो meteorology क्या होती है? Scientific study होती है मौसम की और उसके अंतर्गत मौसम से जुड़ी या वातावरण से जुड़ी हम सभी खबरें, टेम्परेचर, क्लाइमेट, विंड स्पीड, वेलोसिटी, मौसम का पूर्वानुमान, एटमॉस्फेयर की लेयर्स की किस लेयर में कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम स्पेशली ट्रोपोस्फेयर के बारे में सब कुछ हम जानते हैं मेटेओरोलॉजी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज विंड रोज डायग्राम? ऑप्शन ए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. ओके. बी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड स्पीड. सी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विंड डायरेक्शन, या डी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल ट्रेंड्स. Correct option is A, diagrammatic representation of wind velocity, that is the wind speed in specific direction. तो wind rose diagram क्या होता है? Representation of wind velocity या representation of wind speed या representation of wind direction या फिर representation of rainfall trends. सही उत्तर है ये A, diagrammatic representation of wind velocity. और जब हम velocity की बात करते हैं तो उसका मतलब speed और direction की, किस direction में कितनी तेजी से हवा बह रही है। ठीक है। Transboundary layer is A, a sublayer of troposphere closest to the Earth. B, sublayer of troposphere farthest from the Earth. C, a sublayer of stratosphere. या D, a sublayer of ionosphere. Correct answer is A, a sublayer of troposphere closest to the Earth. So transboundary जो layer होती है वो ट्रोपोस्फेयर की एक सब लेयर है जो धरती के सबसे नजदीक होती है। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6. What is the extent of transboundary layer? Transboundary layer कहाँ तक extend करती है? A, 0 to 2 kilometers from the Earth's surface. B, 0 to 5 kilometers from the Earth's surface. C, 0 to 10 kilometers from the Earth. या D, no well-defined boundary. इसमें क्या है? जो ट्रांसबाउंड्री लेयर है वो अर्थ के एकदम नजदीक है, तो 0 मतलब होता है अर्थ सरफेस पर, और अर्थ सरफेस से लेके 2 किलोमीटर तक जो लेयर होती है वो ट्रांसबाउंड्री लेयर कहलाती है। और इस लेयर में जो वेदर का डिस्टर्बेंस है वो मैक्सिमम फील किया जाता है। ठीक है। तो ट्रांसबाउंड्री लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 0, दैट इज सरफेस ऑफ द अर्थ, अप टिल 2 किलोमीटर्स, एंड दिस इज द लेयर वेयर द वेदर डिस्टर्बेंसेस, where the inversion conditions etc happen the most. Okay.
Question 7. Which of the following layers of atmosphere has the maximum weight? Heaviest layer, which is the heaviest layer of the atmosphere? Troposphere, stratosphere, mesosphere या thermosphere? Correct option is A, troposphere. Troposphere जो है जो वायुमंडल की सबसे भारी लेयर है, सबसे धरती के सबसे पास भी है और सबसे भारी भी है. Question 8. Which of the following layers of atmosphere has maximum water vapor? A, troposphere, B, stratosphere, C, mesosphere या D, exosphere? Correct option is A, troposphere. This is the layer having maximum water vapor because it is the closest to the earth, so it has maximum density, weight, water vapor, and as we go up the atmosphere gets thinner. तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो उसमें सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है और इसीलिए वो लेयर सबसे ज्यादा भारी है. और जैसे हम धरती से दूर जाते हैं जो वायुमंडल है वो पतला होता जाता है तो वो उतना भारी नहीं होता है. जो धरती की सबसे करीबी लेयर सबसे ज्यादा उसमें मॉइस्चर और वाटर वेपर होता है और वो सबसे भारी होती है और वो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. Which of the following layers of the atmosphere is the densest and thinnest? Troposphere, stratosphere, mesosphere या ionosphere? Correct option is troposphere. सबसे भारी और सबसे पतली लेयर. So the densest and thinnest layer of atmosphere is troposphere. The extent of troposphere is maximum up to 18 kilometers on the equator and least like 10 kilometers at the poles. ठीक है. Question number 10. Which of the following layers of atmosphere is the hottest? सबसे गर्म लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? करेक्ट ऑप्शन इज डी, थर्मोस्फेयर, एंड हेंस द नेम थर्मोस्फेयर. जो ऑप्शन डी है सबसे गर्म लेयर एटमॉस्फेयर की थर्मोस्फेयर होती है और इसलिए थर्म मतलब गर्म, इसलिए थर्मोस्फेयर. स्फेयर मतलब इलाका और थर्म मतलब गर्म, इसलिए इसका नाम ही थर्मोस्फेयर है. बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि थर्मोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर है, पर फिर भी अगर किसी इंसान को थर्मोस्फेयर में खड़ा कर दिया जाए तो वो सर्दी से ही मर जाएगा. क्यों? क्योंकि जो थर्मोस्फेयर जो लेयर है वो बहुत पतली है, उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है. तो जब आप वैसे किसी पतली सी लेयर में होते हैं तो आपको आपकी बॉडी को जो गर्म मॉलिक्यूल्स टच करेंगे वो उनकी संख्या बहुत कम होगी, मुट्ठी भर गर्म मॉलिक्यूल्स होंगे. लेकिन ट्रोपोस्फेयर जो सबसे हैवी लेयर है एटमॉस्फेयर की और सबसे धरती के पास है, उसमें जो आपको अगर खड़े होंगे तो उसमें जो आपको एयर मॉलिक्यूल्स टच होंगे वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स टच होंगे. तो उस वजह से ट्रोपोस्फेयर में आदमी को गर्मी फील होती है, पर थर्मोस्फेयर सबसे गर्म लेयर होने की वजह से होते हुए भी उसकी डेंसिटी मिनिमल है और इस वजह से वहां पे गर्मी फील नहीं होती है. ठीक है. क्योंकि जो ट्रांसफरेबल हीट एनर्जी है वो कम है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है और मॉलिक्यूल कम होने की वजह से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता. So an interesting information about thermosphere is it is the hottest layer of atmosphere, but the transferable heat energy is minimal because the number of molecules in this layer is minimal. So it is one of the thinnest layers of the atmosphere with the lowest number of molecules, and hence if a person is made to stand in thermosphere, the person will die of cold because there are not too many molecules in that layer to heat up the person's body. I hope what we discussed today was pretty useful. If you could not understand anything, if you have any doubts, please let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And for more mock tests and practice tests, please click the link in the description box. And please don't forget my Guru Dakshina.